Good morning, ninth class. Our today's topic in chapter 3rd is youth in Nazi Germany. Children are the main human resource in any country. The future of country depends on the children. This was the reason why Hitler had a great interest in youth. He believed that in order to establish a powerful Nazi society and make Germany world power only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the children both inside and outside school by parents and government. School started to put children into Nazi ideology. All schools were cleansed and purified. This meant the teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Hitler's hatred for the undesirable began to appear in schools. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. Undesirable children like Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of schools. Hitler believed that these undesirable children would defective children of German race. Hitler was killed through the gas chamber as a final solution when he felt that the problem was not being solved even by separating the undesirable children from German children. Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. School textbooks were rewritten. New subject racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews was popularized even through maths classes. Jews were made fun of in these classes. It was taught that the nose of Jews is like number 6. जो Jews है उनकी नाक 6 नंबर जो है 6 नंबर जो है उसके जैसी दिखती है. वो बेतुके भोंदू इस टाइप के दिखते हैं. तो इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी को दिखाया जाता था, उनके मजाक उड़ाया जाता था. Children were taught that to be loyal and obedient. Jews are your enemies, so they should be hated. Hitler is the protector of our country, so he should be worshipped and respected. Children were given such sports that created a spirit of violence and aggression. Hitler believed that the sport like boxing and wrestling would make children iron-hearted, strong and masculine. यही रीज़न है कि इसी से रिलेटेड कई डिफरेंट टाइप्स के यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो है जर्मन यूथ है उनके लिए इस्टेब्लिश किए गए. इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म इसको क्रिएट किया गया. सोशलिज्म जो है और नेशनलिज्म है, देशभक्ति की जो भावना है, उनमें उनको इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूथ में ये फीलिंग रखी गई प्राउड कि हम लोग जर्मन से ही, हमें प्राउड करना चाहिए. 10 इयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है जंग वॉक ये ऑर्गेनाइजेशन था. यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जंग वॉक. इसमें 10 इयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था. और 14 इयर्स तक का जो स्टूडेंट्स हैं, जो 14 तक की एज के हैं, उनके लिए जो है अदर जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे. फॉर एग्जांपल हिटलर यूथ, ये मतलब बड़े बच्चों के लिए 14 to 18 तक के जो यूथ हैं उनके लिए हिटलर यूथ. इनमें अगर देखें तो इन स्टूडेंट्स को जो 14 से अबव है, इनको वर्शिप वॉर के बारे में उनको बताना कि वॉर अच्छी है. आप वॉर के थ्रू अपने जो प्राउड है, अपने जो रिस्पेक्ट है, उसको ले सकते हैं. आपके ऊपर जो भी जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, उसका सॉल्यूशन वॉर है.
इसमें बताया गया जो एग्रेशन है उसको ग्लोरीफाई किया गया। एग्रेशन दिखाओ। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, अगर आप चाहते कि आपकी जो होप्स है, आपकी वांट्स फुलफिल हो, तो उसके लिए एग्रेशन है। अग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉयलेंस, इस एग्रेशन वॉयलेंस से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस बताई कि डेमोक्रेसी कितना बैड है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी आपको वॉर, अग्रेशन और वॉयलेंस से रोकेगा। आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और जो है इस तरह से जोज है उनसे हेट करना है। किस तरह से उनसे हेट करें? जो कम्युनिस्ट है उनसे हेट करना है। जिप्सीज़ है, यानी जो भी कैटेगरीज़ है जिनको अनडिज़ायरेबल जो है कैटेगरीज़ में जो है उनको रखा गया है, उनसे आपको हेट करना है, क्योंकि ये आपके एनिमीज़ है। ये आपकी जो ह्यूमन रेस है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब ये एक लॉन्ग पीरियड में, जब ये आप इस तरह से इस स्कूलिंग में आपको इस तरह से जो नाजी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर आपका माइंड सेट किया जाएगा, आपको इसके लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी, मींस बॉक्सिंग और रेसलिंग वगैरह और अदर गेम्स वगैरह हैं। उसके बाद में जब आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको लेबर सर्विस देनी है। एज ए लेबर सर्विस जो है आफ्टर 18 जो एज है 18 के कंप्लीट होने के बाद में आपको आर्मी में कंपलसरी जो सर्विस देनी पड़ेगी। यानी अगर आपको फर्दर कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, फर्दर हायर एजुकेशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उससे पहले आपके पास मिनिमम 3 या 5 ईयर की आर्मी की जॉब होनी चाहिए, ये आर्मी में। और जैसे ही आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जैसे ही आपकी कैपेबिलिटीज़ होगी, वैसे आपको आर्मी में अलग अलग, या आर्मी मतलब डिफेंस है, मतलब नेवी वगैरह कोई भी हो, उसमें अलग उस स्ट्रीम में आपको भेज दिया जाएगा जैसी आपकी इंटरेस्ट है और प्लस आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है। यानी आर्मी जो है, आर्मी सर्विस जो है वो कंपलसरी थी, हर किसी को ये देना पड़ता था। एट प्रेजेंट अभी भी अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी में एट प्रेजेंट भी, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, USA, यहाँ पर अभी भी कंपलसरी है। अगर आपने स्कूलिंग कर ली, यानी 12th कर ली, और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, अब आप जॉब करना चाहते हैं, उससे पहले आपको 3 या मिनिमम 3 ईयर्स की आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में फर्दर आप उसको एक्सटेंड करें नहीं करें वो आपकी चॉइस है। तो ये जो है उनको आर्मी में रखा गया। इसके अलावा आपको आगे फ्यूचर में किसी न किसी नाजी जो ऑर्गेनाइजेशन है या नाजी जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट बनना होगा, उसकी मेंबरशिप लेनी होगी। और यही रीज़न है कि 1922 में यूथ लीग जो है इस्टेब्लिश की गई, और ये यूथ लीग ही आगे जो है हिटलर यूथ के नेम से फेमस हुई, काफ़ी फेमस हुई। इसमें जो यूथ है उनको प्रिपेयर किया गया कि इस आइडियोलॉजी को अदर फ्यूचर में इसको आगे बढ़ाया जा सके, इसको जनरेट किया जा सके। और इस तरह से जो है जो नाजी आइडियोलॉजी है वो इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आगे से आगे जो है वो डेवलप हो रही थी। और हिटलर यूथ जो है उसके बनने के बाद में जितने भी अदर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको बैन कर दिया गया, उनको जो है उनका एंड कर दिया गया, और अब सिर्फ एक ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन था ऑल ओवर जो जर्मनी इसमें, और दैट इज़ हिटलर यूथ। थैंक यू।